हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टर राजनीतिक विज्ञान की। ये चैप्टर जो है हर क्लास के हर बोर्ड के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Union executive, the first point, the president. The president is the most important for this category. We have already read that India is a sovereign, is a democratic republic. The president of India, who is the head of state, indirectly selected. The Indian president is the indirectly selected. There is most important for the here. The qualification of the president, the qualification of there is a office of the president are should be a citizen of India and should have its complete to age of 35 years and should be qualified to the elected as a member of the Lok Sabha and should not be hold any office of profit. The candidate should not be a government servant. However, the office of the president, the vice president, the governor is the minister of union or the state is not be considered as the official of profit. This is a purpose. Here the most important fact there, the president cannot be at the same time be a member of parliament or of the state legislature. If the member of parliament or state legislature are selected as a president, his here sheet will be demanded to has been to the vacated on their dates. And she is assumed of the office or president of India. Election and procedure. The president is selected by the electors. College consists of the elected member of both House of Parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha, and the state relatives is assembly is a Vidhan Sabha. The nominated is a member of Parliament as a member of state legislative council are not be member of electoral colleges. And the election is be held by the mean of single transferable voter system of the proportional representations. The voting is done by the secret ballot. The framers of the constitution were keen to be obtained the party between to the vote of their elected member of parliament on one side and the elected to member of the legislative assembly of all the state on the other. They are devised as a system of determine the value of vote of each member of parliament and legislative assembly so as the ensure equality. The value of a vote of each member of legislative assembly of the state determined by the formula is given below. The total population of the state and number elected to the member of state legislative assembly and divided by the 1000. There is a formula of the is each voter is a value. The voter value formula is the total population of the state and the number elected to member of state assembly and divided by the 1000. In simply word, the total population of the state in divided by the number elected member of state and the latest assembly and the content of divided by the 1000. Here show the one example. Let us suppose that the population of the Punjab is a and this and the other number of the state of Vidhan Sabha is a 104. The votes which we each relative entirety of the case will be is a here 1 crore 35 lakh 51,000 and upon 104 is a 104 and divided by 1000. There is a 130 is come again. There is a 130 is as a reminder is a 2.9 is less than the 50%. It is a ignored. There is a most important thinking here. The value of the vote is a 130. There is a formula of the president of elected. And the value of each vote of member is a parliament is determined the adding all the voters of their member of the state legislative assembly and include the legislative assemblies of the territory of Delhi and the Pondicherry divided by the total number of elected member of Lok Sabha and Rajya Sabha. There is a formula here. The total number of votes of the member of all the state legislative assemblies and total number of elected member of the both house of parliament. The example, the vote of all the state legislative assemblies are added. Let us suppose that the total number of votes of the all the legislature of 5,44,971 and the total number of elected member of parliament is 776. Then the number of votes of each member of parliament will be is a 5,44,971 divided by the 776. There is a value of vote is a 700
2. The value of the vote is here is a 702. About there is the stage of reminders less than 50 of the divide, it is ignorance. But when the remainder of 50% or more, one vote is added to the quotient. There is the most important is here. A single transferable voter system. The election of their president is held through the single transferable vote system of the is a proportionally is representation. Under this system, name all their candidates are listed on their ballot paper and the electors give them the numbers of according to his hair performance. Every voters may be marked on the ballot paper as many reference as their candidate, and thus the electors shall as place the figures one opposite to the name of their candidate was the C. He is the choose for first performance and the make mark on the many reference. And the he she is the wish to putting the figures 2, 3, 4 and so on the against the name of the other candidate as a ballot because they are in the valid first performance market against more than one candidate or if their first performance is not a market at all. The counting of the voter is a declaration of the result. The member of state legislature assemblies is a cast. There is the vote. Voters is the state of capital. Will the member of parliament and the cast there is a vote in the Delhi in the state capital. A counting of votes is done at their New Delhi. The first performance votes of all the candidates are sorted out and the counted. To be declared elected to the candidate must get more than 50% of the total valid votes polled, and this is known as a quota. The quota is determined to the total number of the voter polled and divided by the number of candidates to be selected plus 1. In this case, since only there is a president to set elected and so division of done by 1 plus 1. 1 is there added to the quotient to be a make is a more than 50. The quota here at the first count, only first performance vote are the counted if any of the candidate is the richest the quota, he she is declared elected. In case no candidate is reaching their quota, then the second performance votes of the candidate is getting the least number of first performance voters are there transferred to the other candidate. Thus the candidate is getting the least number of votes of eliminated. If after counting a candidate is the rich quota, he she is declared is elected as their president. In case no candidate is the richest quota, even at this stage, when the voters of the next candidate is getting the least number of voters are transferred to the others, and it's continue till any one candidate get the quota of the voters. Let's understand with the following example. Supporting the total number of valid voters is a 20,000 and there is a 4 candidate A, B, C and D. The quota is this case will be 20,000 upon 1 plus 1 and the plus 1 that is equal to 10,001. Let us assume that the first performance voters case is a favor of all the 4 candidates are as follow. The first here 9,000 and B here is a 2,000 and C is a 4,000 and D is a 5,000. As no candidate has reached the quota is a 10,000 candidate. B getting the least number of voters get eliminated and the vote are transferred to the other candidate. Supposing as a result of transfer of the voters A get a 1,100, C get a 500 and D is a 400. Now the position would be a following. There is the here the A is a 9,000 and the plus 1,000 is a 100 is a 10,100 and the B is a 6,000 plus 400 is a 6,400 here and C is a 4,000 and plus 500 is equal to 4,500. A sign at which the quota is declared elected to the president. Here the A is the quota is a declare of president because there is a touch the boundary line of 10,000 is a 1. There is a total A is the voting here 10,100. There is the selected by the president seat. Before entry upon to the vice and president has to take oath of the office in the presence of Chief Justice of India.
दोस्तों हमारा यहाँ पर जो टॉपिक आया है संघीय कार्यपालिका, जिसमें हम राष्ट्रपति के जो है नियुक्ति के विषय में जो चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कहते हैं अगर राष्ट्रपति को देखा जाए तो पहले पढ़ चुके हैं कि भारत एक जो है प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत के राष्ट्रपति जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी देखा जाए तो राष्ट्रपति की जो सिलेक्शन होती है वो जनता के द्वारा नहीं होता है। जनता के जो सदस्य भेजे गए होते हैं पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा में, उनके द्वारा ये चुना जाता है। यानी देखा जाए तो इंडिया में जो है राष्ट्रपति चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ प्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी ये दोनों में बहुत ही अंतर होता है। अगर बात करें हम राष्ट्रपति की योग्यता के ऊपर तो कहते हैं सबसे पहली बात तो एक ही होता है कि वो भारत का नागरिक होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो जो है 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और वो लोकसभा तथा राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वो किसी भी लाभदायी पद पर आसीन न हो, अर्थात जो है प्रतिशाही सरकारी कर्मचारी होना चाहिए। इस संदर्भ में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तथा केंद्र तथा राज्य में मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। राष्ट्रपति के पद पर जो है आसीन व्यक्ति संसद का सदस्य या राज्य में विधायक नहीं हो सकता। यदि कोई संसद या विधायक राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित हो जाता है तो उसका संसद अथवा विधानमंडल के स्थान उस दिन से रिक्त माना जाता है जिस दिन से वह राष्ट्रपति पद जो है ग्रहण करता है। अब देखते हैं कि हमारा जो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो किस विधि से पूरा होता है और किसके जो है किस प्रकार गणना किया जा सकता है। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक जो है निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जिसमें संसद के दोनों सदन अथवा लोकसभा एवं राज्यसभा तथा राज्य के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। संसद के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषद के मनोनीत सदस्य इस निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। निर्वाचन अनुपातिक जो है प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण प्रणाली द्वारा किया जाता है। मतदान गुप्त मंत्र द्वारा होता है, यानी मतदान जो होती गुप्त होती है। कहते संविधान निर्माता चाहते थे कि संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत तथा सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मत एक सामान्य हो। इसलिए मतों की समानताओं को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने एक तरीका निकाला जिसके द्वारा प्रत्येक निर्वाचित संसद विधायक को वोट का मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य कुछ इस सूत्र द्वारा जो है निकाला जा सकता है। यानी वोट का जो वैल्यू है निकालने के लिए ये होता है कि राज्य की कुल संख्या उस क्षेत्र में कितनी है और राज्य विधानसभा कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है और उसको डिवाइड करना होता है 1000 से। यानी सरल शब्दों में हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि राज्य की कुल संख्या को राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग करके जो है भागफल को फिर 1000 से भाग दिया जाए। यदि इस बात को अगर हम उदाहरण के रूप में समझें तो ये आपके लिए बहुत आसान रहेगा। मान लीजिए पंजाब की जनसंख्या जो है 1,35,51,660 है तथा विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है 104 है, तो प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य क्या होगा। और मत के मूल्य निकालने के लिए आपको जो होगा, देखिए यहाँ पर 1,35,51,000 लिया गया है और 104 नीचे है और डिवाइडेड बाय 1000 किया गया है। जब इसको सोल्यूशन करोगे तो आपको आएगा 130 आएगा, 0.29 आएगा। तो इसका कारण क्या है? इसका मतलब यही हुआ कि 130 जो है उस विधायक के जो है वो वोटिंग का वैल्यू माना जाएगा। अब पूर्ण संख्या बनाने का तरीका जो है 29 पॉइंट में है, जो 50% से कम होता है तो उसको नहीं जोड़ा जाता है। यानी देखा जाए तो अगर 50 से ऊपर होता है तो उसको एक नंबर जोड़ दिया जाता है, अगर 50 से कम होता है तो उसमें वो नंबर नहीं जुड़ता है। यानी अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 130 है और यहाँ 29 है तो ये एक जो है 130 ही रहेगा। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर 29 के जगह पर अगर यहाँ पर 60 या 59 या 55 होता तो इसमें एक जुड़ जाता, यानी ये हो जाता है 131 हो जाता। तो इस तरह से जो है गणना किया जाता है। तो ये गणना करना बहुत आसान होता है और इसी से जो है उसके वोटिंग का वैल्यू जो होता है पता लगता है। संसद के प्रत्येक सदस्य की जो है मत का मूल्य निकालने के लिए सभी राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली एवं पांडिचेरी की विधानसभाओं के सभी सदस्यों के मत जोड़कर लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी निर्वाचित संसदों की संख्या से विभाजित किया जाता है। यानी एक संसद का मत जो होती है सभी विधान सभाओं के निर्वाचित विधायकों के कुल मत और संसद के दोनों सदनों के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या। यानी हम उदाहरण के लिए तो ऐसे हो सकता है कि सभी राज्यों की विधान सभाओं के मतों को जोड़ दिया जाए। मान लीजिए यह संख्या जो है 5,44,961 है
और संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो है 776 है। तो इसको जो है प्रत्येक संसद के मत किसके रूप में दिया जाएगा, देखिए इसको डिवाइड करके निकाला गया तो 702 है, लेकिन अगर देखिएगा तो पॉइंट जो है 50 से नीचे नीचे है, तो इसका मतलब है कि ये 702 ही रहेगा, 703 नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी 50 से नीचे नीचे होता है तो उसको एक नहीं जोड़ा जाता। अगर 50 से ऊपर होता है पॉइंट के आगे तो एक जो है जुड़ जाता है। कहते हैं एकल संगठन संदर्भ जो है मत प्रणाली, कहते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमित मत प्रणाली से होता है। इस प्रणाली में सभी जो है प्रत्याशियों के नाम जो है मत पत्र पर लिखे जाते हैं और मतदाता उनके आगे संख्या लिखते हैं। प्रत्येक मतदाता मत पत्र पर जो है वरीयता क्रम में उतनी पसंदें लिखता है जितने प्रत्याशी होते हैं। उसी प्रकार वह अन्य प्रत्याशी के नाम के आगे भी अपने संसद पसंद के आधार पर संख्या 2, 3 या 4 आदि लिख देता है। यदि पहली पसंद न लिखी जाए अथवा एक से अधिक अप्रत्याशी के नाम के आगे पहली पसंद लिखी जाए तो मत अवैध घोषित कर दिया जाता है। यानी आपको एक को ही चुनना होगा जो आपके लिए मनपसंद होगा। अगर हम मतगणना परिणाम की घोषणा की बात करें तो वो भी एक अलग तरीके से होता है। कहते हैं राज्य विधानसभाओं के सदस्य अपना मतदान राज्य की राजधानियों में करते हैं, जबकि संसद सदस्य अपना मत दिल्ली या राज्य की राजधानियों में भी कर सकते हैं। मतगणना नई दिल्ली में होती है। पहली पसंद के आधार पर सभी प्रत्याशी के मत जो है अलग अलग करके गिन लिए जाते हैं। निर्वाचित घोषित होने के लिए कुल डाले गए जो है वैध मतों के 50% से अधिक मत प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसे कोटा अथवा न्यूनतम आवश्यक अंक कहते हैं। कोटा निकालने के लिए कुल डाले गए अवैध मतों की निर्वाचित होने वाले प्रत्याशी की संख्या में एक जोड़कर भाग किया जाता है। क्योंकि केवल राष्ट्रपति को ही निर्वाचित होना है, इसलिए 1+1 अर्थात 2 से भाग भी दिया जाता है। न्यूनतम अंकों को जो 50 से अधिक बनाने के लिए जो है भागफल 1 जोड़ दिया जाता है। इसलिए कोटा का जो होगा यहाँ फॉर्मूला कुल डाले गए वैध मत 1+1+1, यानी पहली गणना में केवल पहली पसंद ही गिना जाता है। यदि कोई भी प्रत्याशी कोटा प्राप्त कर लेता है तो उसे विजय घोषित कर दिया जाता है। यदि कोई भी प्रत्याशी आवश्यक न्यूनतम अंक अथवा कोटा प्राप्त नहीं कर सकता है तो सबसे कम पहली पसंद प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को दूसरे पसंद के आधार पर उसके मतों का हस्ताक्षर बाकी प्रत्याशी में कर दिया जाता है। इस प्रकार सबसे कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी का नाम हटा दिया जाता है। यानी इसमें एक इम्पोर्टेंट बात होता है कि जो व्यक्ति को कम से कम वोट मिला, अगर मान लीजिए किसी का जो है राष्ट्रपति तय नहीं हुआ है तो इसमें कहते हैं इसके एक आंकड़ा होता है 10,001, जो 10,001 आंकड़ा पार कर लेता है उसी को ही राष्ट्रपति घोषित किया जाता है। और मान लीजिए कोई इतना आंकड़ा पार नहीं कर चुका हो तो इसमें जो है सबसे कम जिसको वोट मिला हो उसको जो है हटा दिया जाता है, यानी नाम से हटा दिया जाता है। दूसरी गणना के आधार पर किसी भी प्रत्याशी को वंचित मत मिल जाए तो उसे राष्ट्रपति पद के लिए विजय घोषित कर दिया जाता है। यदि अब भी किसी प्रत्याशी को कोटा नहीं प्राप्त होता है तो सबसे कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को मत उसकी तीसरी पसंद के आधार पर बाकी जो है प्रत्याशी में हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि कोई भी प्रत्याशी वांछित मत प्राप्त करके विजय घोषित नहीं होता है। आइए हम इसके बारे में उदाहरण की सहायता समझने के प्रयास करें। मान लीजिए कुल जो है वैध मतों की संख्या 20,000 है और अब जो है इसको ABCD यानी अ, ब, स और द 4 प्रत्याशी में यहाँ पर वांछित अंक कोटा होगा। तो आपको पता ही है कि 20,000 1+1+1 यानी इसकी संख्या जो होगी 10,001 होगी। मान लीजिए पहली गणना में चारों प्रत्याशियों को पहली पसंद के आधार पर मिले मत कुछ इस प्रकार है। एक को आपको मिला है 9,000, एक को मिला है 2,000, एक को मिला है 4,000 और एक को मिला है 5,000। इस स्थिति में किसी प्रत्याशी को वांछित अंक अर्थात 10,001 मत नहीं मिले हैं। सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले प्रत्याशी ब को हटा दिया जाता है, यानी ब जो है 20,000 वोट के साथ है तो उसको यहाँ से हटा देने का प्रावधान है। दूसरे को हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं, यानी मान लीजिए मतों का जो है आधार अ को 1,000 यानी 1,100 संख्या और 500 तथा 400 मत मिले हैं, तब उसकी स्थिति इस प्रकार होगी। तो उसी अनुसार हम इसको क्या करते हैं प्लस कर देते हैं, जिसमें अ जो होता है 9,000 + 1,000 10 तो 10,100 हो जाता है, यानी 10,100 हो जाता है। अगर बात 100 की करें तो 4,500 होता है, तो प्लस करेंगे तो 4,500 में आ जाएगा। अगर द की बात करें तो यहाँ 5,000 + 400 है तो 5,400 होगा।
तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है अ को जो है पूरी तरह से बहुमत मिल चुका है, यानी यहाँ पर जो है अ जो है यहाँ पर विजय घोषित हो चुका है। तो इससे जो है विजय घोषित करना बहुत ही आसान होता है। राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ लेनी भी होती है। तो इस प्रकार जो है राष्ट्रपति की घोषणा हो जाती है और राष्ट्रपति जो है देश के लिए चुन लिया जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रेसिडेंट और टेन्योर्स एंड द रिमूवल. There is the most important topic here. The president is elected for a term of 5 years and eligible for the re-elections through a convention has developed that no president seek a election for the third terms. However, the first president, Dr. Rajendra Prasad, was elected for 2 fully terms. She may be resigned before the expire of his terms, or the office of president may be fall vacant due to her or she's death. His term of office commences from the date of take of the oath of the office. There is a first point here as the privileges and immunities. There is the most important. The President of India enjoys the content of privileges and immunities which then include the following. The President is not answerable to any court of law for the exercise of his function. The President can neither be arrested nor a criminal and proceedings be instituted against him any court of law during his tenure. And the President cannot be asked to be present in any court of law during to the tenure. And the periods of notice of 2 months time to be served before the instituting of a civil case against him. The second point here is the removal of the president. The presidents can only be removed from the office through a process called the impeachment. The constitutional law down to the detailed procedure for the impeachment of the president. He can only the impeached from the violations of constitution. The following procedure is there intentionally of the kept very difficult so that no president should be removed on films as a ground. And there is a devolutions to be impeached of the president can be removed in either house of parliament. Such a revolutions can be moved only after a notice has been given by at least 1/4 of the total number of members of house. Such a revolutions charging the president for the violations for the constitutions must be passed by a majority of not less than the 2/3 of their total membership of that house before it goes to the other house of investigation. The charges is leveled is against the president are investigated by the second house. The president has the right to be heard to defend it when the charge against him are began investigated. The president may be defend himself a person through his counsel. If the charge are they accepted by a 2/3 majority of the total membership of the second house. The impeachment is the succeed. The president thus the stand removed from to the office from a date on which their revolution is passed. The procedure of the impeachment is a more difficult than one adopted in America, where only simply majority is required in a House of Representatives to initiate there is a proceeding. There is a most important impeachment is a meaning. What do you mean to the impeachment? Impeachment is the quasi-judicial procedure leading to their removal of high public official, say the president as India on the ground of their violation of the constitution. The next year, the vacancy in the office of the president, wherever the office of the president fall vacant either due to the death of and as resignations and impeachment. The vice president officiate for the periods not more than the 6 months. The constitution has made it is obligatory that in such a case of vacancy is the office of president. Election for the new president must be held within the 6 months. The new elected president then hold of office for his fully term of 5 years. Thus, when a president is a Fakhruddin Ali Ahmad died in 1977, Vice President B.D. Justice officiate. The new president is a Sanjeeva Reddy was elected within the 6 months. In case of president office fall vacant and the vice president is not be available, the vice president
acting as a president die either resign in the less than 6 months. The Chief Justice of the India is required to officiate till the new president is selected. And this provision was made in 1969 by the Parliament to the enable Chief Justice Huthaulu of officiate by the President Zakir Hussain has died and the Vice President B.V. Giri is resigned. And if a president is temporarily unable to discharge his duties due to illness or otherwise, their vice president might be discharged the function of the president without officiating as the president. देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम राष्ट्रपति की अगर हम नियुक्ति के विषय में चर्चा किए तो हटाने के विषय में भी चर्चा करना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। तो हमारा जो टॉपिक है राष्ट्रपति कार्यकाल तथा पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है। कहते हैं अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। वो अवधि समाप्त होने पर पुनः चुनाव भी लड़ सकता है। यद्यपि जो है स्थापित परंपराओं के अनुसार वह तीसरी बार इस पद के लिए चुनाव नहीं लड़ता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने गए थे। राष्ट्रपति कार्यकाल पूरे होने से पहले भी त्याग पत्र दे सकता है या यह पद उसकी मृत्यु के कारण भी खाली हो सकती है। उसका कार्यकाल शपथ ग्रहण कर पद लेने की तिथि को आरंभ हो जाती है, यानी जब वो शपथ ग्रहण करता है तभी से वो राष्ट्रपति के लिए मनोनीत किया जा सकता है। बात अगर हम करें विशेष अधिकार एवं अनुमुक्ति का, तो कहते हैं वह अपने कार्य के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल में बंदी नहीं बनाया जा सकता और न ही उसको जो है विरुद्ध किसी प्रकार के फौजदारी कार्यवाही भी किया जा सकता है। राष्ट्रपति कार्यकाल में उसे किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति पर कोई दीवानी मुकदमा चलाने से पूर्व कम से कम 2 मास का नोटिस दिया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं अगर राष्ट्रपति को पद स्थल करना होता है तो राष्ट्रपति उसके पद से केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की विधि का विस्तृत उल्लेख है। महाभियोग केवल संविधान का अतिक्रमण करने पर ही चलाया जा सकता है। यह विधि जानबूझकर इतनी कठिन बनाई गई है ताकि किसी भी राष्ट्रपति को किसी तुच्छ आधार पर न हटाया जा सके। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव केवल सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद रखा जा सकता है। और इस तरह का जो है प्रस्ताव जिसमें राष्ट्रपति के विरुद्ध संविधान के अतिक्रमण का आरोप हो, कि कम से कम सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित किया जाना चाहिए, केवल तभी दूसरा सदन जो है आरोपित की जांच कर सकता है। राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों को जांच दूसरे सदन द्वारा भी की जाती है। इस अवसर पर राष्ट्रपति स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि द्वारा अपने को निर्दोष साबित करने के लिए उपस्थित होकर सफाई पेश कर सकता है। यदि आरोपी के दूसरे सदन के कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से स्वीकार कर लिया जाता है तो महाभियोग पारित किया जाता है और इस प्रकार राष्ट्रपति उस दिन से पद जो है मुक्ति हो जाता है। महाभियोग की यह प्रक्रिया अमेरिका में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से कहीं अधिक कठिन है। यहाँ से कार्यवाही आरंभ करने के लिए प्रतिनिधि सदन में केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर शब्द देखें इम्प्लीमेंटेड क्या है, तो कहते हैं महाभियोग होती क्या है। कहते हैं महाभियोग एक ऐसी आद्य न्यायिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है उच्च पद पर आसीन किसी भी लोक सेवक जैसे भारत का राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने के कारण अपने पद से मुक्त किया जा सकता है। अगला पॉइंट देखें तो राष्ट्रपति पद का रिक्त होना। देखिए जब भी मृत्यु या त्याग पत्र या महाभियोग के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यभार संभाल लेता है, परंतु यह जो है कार्यकाल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। संविधान के अनुसार अनिवार्य रूप से रिक्त स्थान को भरने के लिए राष्ट्रपति का निर्वाचन 6 महीने के अंदर अवश्य हो जाना चाहिए। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अपने पद पर पूरे कार्यकाल अथवा 5 वर्ष के लिए बना रहता है। जब राष्ट्रपति जब फखरुद्दीन अली मोहम्मद की मृत्यु हुई थी तो 1970 में हुई उपराष्ट्रपति बी.डी. जत्ती को कार्यवाही राष्ट्रपति बना दिया गया था और 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का जो है चुनाव हो गया था जिसमें संजीव रेड्डी बने। यदि राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति उपलब्ध न हो तो कारण 6 महीने से पूर्व मृत्यु या त्यागपत्र हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होने तक राष्ट्रपति पद पर कार्यभार संभाल लेते हैं। संसद द्वारा यह प्रावधान 1969 में उस समय पारित किया गया जब राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई और उपराष्ट्रपति बी.वी. गिरी ने त्यागपत्र दे दिया था। यदि कोई उपराष्ट्रपति बीमार या किसी अन्य कारण से स्थायी रूप से अपना दायित्व निभाने के योग्य नहीं है
तो उपराष्ट्रपति बिना कार्यभार संभाले राष्ट्रपति की जिम्मेदारी को बयान कर सकता है। तो ये सारे प्रावधान है। देखिए, अगर राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं है तो उपराष्ट्रपति संभाल सकता है। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो इसके जगह है उच्च न्यायालय के जो उच्च न्यायाधीश होते हैं उसको राष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत कर दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम व्यू पावर ऑफ द प्रेसिडेंट हियर। The constitution has a vested their president with the vast is power. Broadly, there is the powers of there is the president can be classified as a executive, legislative, and financial and judicial power. His emergency power are already detailed with the lesson 9, and here power. Executive power. The executive power of the president, head of state, executive power of the union has been vested in him. The president is empowered to exercise this power either directly or through officer as a subordinate to him, which mean to throw the is a prime minister and council of minister also. His executive power are given below. The president is appointed to prime minister and is appointed the minister on their advice to the prime minister. He is allocated is a for follows is among to the minister on their advice of the prime minister. He may be removed any minister on the advice of the prime minister. The president appointment the chief justice and other judge of the Supreme Court and the High Court. However, in all the judicial appointment, the chief justice of India is consulated. Besides, there is a president may be also consul, such as the other judge and of the Supreme Court of the president may be demanded is necessary. Well, the appointings of the chief justice and justice of High Court, there is a president has been consult the state governors also. In the appointment of High Court and judge, the president also is a consul chief justice of state, but not to accordance with there is a 1993 decision of the Supreme Court are reinterpreted in the 1999. There is see the chapter 12. The president is bounded by the recommendations of the panel of senior most judge of the Supreme Court in the matter of the all judicial appointment. This panel headed by the Chief Justice is known as a Collegium of a Supreme Court. This is a president appointment to the Attorney General. There is a Comptroller and the Auditor General of India and the Chief Election Commissioner and other election commissioner is the chairman and member of Indian Public Service Commission. Yeah, UPSC. He and she also appointment the governor of state and the LT governors of the union territory. All such appointments are made on the advice of Union Cabinet headed by Prime Minister. The President appointment India Ambassador and the High Commissioner in the other country, and the President receive a foreign ambassadors and his High Commissioner. All the diplomatic work is conducted in his here name by the foreign office and the India involved about it. All the international tradings are annotated and concluded in here as a name. All the law is carried by the Union Parliament and enforced by him here. All the official appointment by his here such as a governor and ambassador may be a removal or recalled by him and here on the advice of the Union Council of Minister. All the functions are performed by the President on the advice of Prime Minister. All decisions of the Union government is communicated to him here by the Prime Minister. The President can be asked the Prime Minister only wants to have a recommendations of their executive recognized it by their cabinet. The President can be also referred to the minister and decision to the cabinet for the considerations. The President cannot be seek a second is a reconsiderations. The President is a second power is a legislative power. The President began to integrate part of the Parliament enjoy many legislative power. This is a power as given below. The President is a summons and prorogues their House of Parliament and he may be summoned there is a Parliament at least twice a year and the gap between two seasons cannot be more than 6 months. The President has a power to dissolve their Lok Sabha is even before the expire of its term and the recommendations of the Prime Minister. In normal course, she is dissolved a Lok Sabha after 5 years.
The president is a nominate is 12 member to the Rajya Sabha for amongst person having the specific knowledge in their field of the literatures and science, arts and social service. The president may be also nominate the 2 member of Anglo-Indian community to the Lok Sabha is a case that a community is not be adequate of the represented in the house. The president can be called adjoint to the sitting of the 2 houses of parliament in case of disagreement between Lok Sabha and Rajya Sabha on the no money bill. There is the most important is a disagreement. And so for the tries is such a joint sittings has been a summoned is a session lesson number 11. The president has been right to the address and send the message of the parliament. The president addresses to both House of Parliament jointed at the first season after every general election as well as a consent of the first season every year. The address is the content of policy of government of the day. And the next year, every bill passed by the parliament is sent to the president for here is assent. The president may give his assent of the return its ones of the reconsiderations of parliament. If passed against the president has to be give here assent. Without his here assent, no bill can become a law. The president may be is a promulgate of the accordance when to the parliament is not be in a sessions. The ordinance and the issue has the force of the law. The ordinance is the promulgated is the should be allowed before both house of parliament within the reasonable. If there neither is rejected of there is a parliament nor a withdraw by the president, it is automatically left 6 weeks after the is a commencement of the next season of parliament. Generally, a bill is a move by the government to the enact as a law of place of the ordinance. The third power of president is a financial power. All money bills are introduced in the Lok Sabha only with the prior approval of the president. The president has a control over contingencies fund of India. It is allowable here and advance of money for the purpose of meeting is unforeseen expenses. Annual budget and the railway budget are introduced in the Lok Sabha on the recommendations of president. If the government in the middle of the financial year feel that more money is required than the estimate in there is an annual budget, it can present of supplementary demand. And this money bill are never to return for or reconsiderations. The president is appointment the financial commissions after every 5 years. It makes recommendations of the president one some special financial matter, especially is the distribution of the central taxes between the union and state. The president also received the report the is a comptrollers and authorities generally of India and has to let in their parliament. So here is the most important is a contingency of fund of India that it is a fund keep the union government to meet any unforeseen expenditures for which the money is immediately needed. The president has a full control over this fund. The president is a permit of withdraw from with this fund. The fourth power is a president here, a judicial power. You have seen above the president is appointment chief justice and other judge of the Supreme Court. The president also appointment chief justice and other judge of the High Court. The president appointment law of officer of the union government including the Attorney General of India. The president head of state is a pardon of the criminal and reduce the punishment or suspended is a commute or remanded their sentence of criminal convicted by their Supreme Court or High Court of on offense against the federal law. The president can be a pardon a person is a convicted is a court materials. He is the power of pardons included to a granting of pardons even to a person is a awarded to the death sentence. But the president perform this function on the advice of the law ministries. हमारा जो अगला टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है जो कई एग्जाम में भी आया है, राष्ट्रपति की शक्तियां. देखिए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को अनेक शक्ति प्रदान की गई है. मुख्य रूप से राष्ट्रपति की शक्तियों का जो है कार्यपालिका संबंधी विधायक वित्तीय और
न्यायिक शक्ति को वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी इसको हम देखें तो 3 टाइप से जो है हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। उसकी आपातकालीन शक्तियों की चर्चा हम पहले ही 9वें चैप्टर में कर चुके हैं, यानी अगर आपने नहीं देखा है तो 9वें चैप्टर का जो है आपातकालीन शक्तियाँ वो जरूर देखें, जो कि राष्ट्रपति के पास निहित होती है। अब हमारा सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। देखिए, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है और संघ सरकार की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों से प्रदान भी की गई है। राष्ट्रपति इन शक्तियों का जो है प्रयोग प्रत्यक्ष अथवा अपने अधीन कार्याधिकों के माध्यम से कर सकता है, जैसे प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद। उसकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां नीचे दी गई है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और फिर उसको परामर्श पर जो है शेष मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। प्रधानमंत्री सलाह से वह मंत्रियों के विभाग का वितरण भी करता है और उसी की सलाह पर वह किसी भी मंत्री को जो है पदस्थल भी कर सकता है। यानी देखा जाए तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के विचार विमर्श से जो है अगले मंत्रियों को जो है एक गठन करता है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास निहित होती है। राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय तक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करते हैं। सभी न्यायिक नियुक्तियों करते समय वह मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श भी करता है और इसके अतिरिक्त वह जो है सर्वोच्च न्यायालय किसी भी न्यायाधीश से जिसे वह ठीक समझता है परामर्श कर सकता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय वह राज्यपाल के भी सलाह लेता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति वह राज्य के मुख्यमंत्री से भी परामर्श करता है, परंतु अब उच्च न्यायालय के जो 1993 में निर्णय के अनुसार, जिसकी 1999 में उन्हें व्याख्या भी की गई थी कि राष्ट्रपति सभी न्यायाधीश नियुक्तियों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों की जो है नाम सूची खंड की सलाह के मानने के लिए बाध्य रहेगा। मुख्य न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाले इस खंडपीठ को जो है उच्च न्यायालय का जो है कॉलेजियम कहा जाता है। राष्ट्रपति भारत के जो है महान न्यायवादी, महालेख परीक्षक या मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित अन्य आयुक्तों, संघीय लोकसभा यानी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी करता है और राज्य के राज्यपाल तथा जो है केंद्र शासित क्षेत्रों के राज्यपाल की भी नियुक्ति ही राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। ये सभी नियुक्तियां प्रधानमंत्री और संघीय मंत्री परिषद की सलाह से की जाती है। राष्ट्रपति सशस्त्र सेना का जो है प्रधान सेनापति होता है, इस नाते वह थल, जल, वायु सेना अध्यक्ष की नियुक्ति भी करता है। राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा तथा शांति संधि भी कर सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते वह देश के विदेश संबंधी मामलों को भी देखभाल करता है। वह दूसरे देशों के लिए भारत के राजदूतों तथा उच्च आयुक्तों की नियुक्ति भी करता है तथा दूसरे देशों के राजदूतों और आयुक्तों के जो है स्वागत भी करता है। सभी कूटनीतिक कार्य विदेश में हमारी दूतावास तथा जो है राजदूतों के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौता उसी के नाम से किया जाता है। वह संघीय जो संसद द्वारा पारित सभी कानून को लागू करता है और केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह से अपने से जो है द्वारा नियुक्ति सभी अधिकारियों जैसे राज्यपाल, राजदूत को हटा भी सकता है या वापस बुला भी सकता है। राष्ट्रपति अपने सारे कार्यकाल प्रधानमंत्री की सलाह से ही करता है और प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए सभी निर्णय की सूचना राष्ट्रपति को भी देता रहता है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो कार्यपालिका किसी भी निर्णय पर जो है पुण्य विचार के लिए प्रधानमंत्री को केवल एक बार कह सकता है। वह किसी मंत्री के निर्णय पर पुण्य विचार के लिए मंत्रिमंडल को भी कह सकता है, परंतु पुण्य निर्वाचन के लिए 2 बार नहीं कह सकता। ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात था कि 2 बार कहने का प्रावधान नहीं है। उसके पश्चात है विधायक शक्ति, यानी संसद का विभिन्न अंग होने के नाते राष्ट्रपति को अनेक जो है विधायक शक्तियां भी प्राप्त है। ये शक्तियां इस प्रकार है, राष्ट्रपति संसद के सदनों के अधिवेशन आमंत्रित कर सकता है या उनकी बैठक स्थगित भी कर सकता है। वो संसद का अधिवेशन वर्ष में कम से कम 2 बार बुला सकता है, परंतु किन्हीं भी 2 सूत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर होना नहीं चाहिए। राष्ट्रपति को यह शक्ति भी प्राप्त है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर वह लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी भंग कर सकता है। सामान्य स्थिति में वो लोकसभा 5 वर्ष के लिए पश्चात ही भंग करता है। वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है जो साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखते हों। यदि लोकसभा में अलग भारतीय समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व न हो तो उसे समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत भी किया जाता है। यानी एंग्लो इंडियन की जो है नियुक्ति जो जिसमें से 2 सदस्य होते हैं राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। यदि किसी साधारण विधायक के मामले में लोकसभा और राज्यसभा में सहमति न बन पाए तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है और अभी तक ऐसी 3 संयुक्त
बैठक बुलाई जा चुकी है। इसके बारे में हम जो है 11 चैप्टर में करेंगे। राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार भी प्राप्त है। वह प्रत्येक वर्ष होने वाले संसद के दोनों सदनों के प्रथम बैठक एवं आम चुनाव के बाद होने वाले संसद की प्रथम बैठक को संबोधित करता है। उन संबोधनों में तत्कालीन सरकार की नीतियों का वर्णन होता है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधायक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उसके पास भेज दिया जाता है और वह स्वीकृति प्रदान भी करता है अथवा पुनर्निर्वाचन के लिए संसद को वापस भेज भी सकता है। यदि संसद इस विधायकों को पुनः पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही पड़ती है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई विधायक कानून नहीं बन सकता है। जब संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और इस प्रकार अध्यादेश को कानून की शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे अध्यादेश को जो है संसद के दोनों सदनों के सम्मुख जब अधिवेशन प्रारंभ हो तो रखना जरूरी है। यदि अध्यादेश न हो तो संसद द्वारा स्वीकार किया जाए और न ही उसे राष्ट्रपति वापस ले तो संसद के अगले सत्र के आरंभ होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर इसे जो है स्वयं ही रद्द समझा जाता है। अंततः अध्यादेश के स्थान पर कानून बनाने के लिए सरकार का विधायक प्रस्तावित किया जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है वित्तीय शक्ति। देखिए, सभी धन विधायक राष्ट्रपति के पुण्य अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। भारत के आकस्मिक निधि पर जो है राष्ट्रपति का पुण्य अधिकार होता है और इसी से वह किसी भी भावी या आकस्मिक कार्य के लिए आगामी राशि प्रदान भी कर सकता है। वार्षिक बजट तथा रेल बजट राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में पारित किए जाते हैं। यदि सरकार चलते वित्तीय वर्ष के बीच में यह अनुभव करे कि उसे जो है वार्षिक बजट में अनुमानित राशि से अधिक राशि चाहिए तो वह जो है पूरक बजट भी प्रस्तावित कर सकता है। धन विधायकों को कभी भी पुनर्निर्वाचन के लिए संसद में वापस नहीं भेजा जा सकता है। प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति वित्तीय आयोग का गठन कर सकता है और यह आयोग कुछ वित्तीय मामलों में राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश विशेष तौर पर केंद्र तथा राज्य के केंद्रीय करों में बंटवारे के में प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति महालेख परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त कर उसे सदन में प्रस्तुत भी करता है। यदि बात करें भारत का आकस्मिक निधि तो यह केंद्रीय सरकार की ऐसी निधि है जिसे किसी आवश्यक आकस्मिक खर्च को पूरा किया जा सकता है। इस पर राष्ट्रपति का पुण्य नियंत्रण होता है और वह इसमें से पैसा निकालने की भी आज्ञा देता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है न्यायिक शक्तियाँ। ठीक है, इसके बारे में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये तो हमें पता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो इसका मतलब है कि न्याय शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास ही निहित होती है। वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है और वहाँ जो है महा न्यायवादी सहित केंद्रीय सरकार के विधिक अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा संघीय कानून को जोड़ने के लिए भी दोषी पाए गए अपराधियों को राष्ट्रपति को जो है क्षमादान करने की पूरा स्वतंत्रता है। किसी दंड को कम करने अथवा कुछ समय के लिए स्थगित करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को दिया गया है। वो कोर्ट मार्शल द्वारा दंडित किसी भी अपराधी को दंड से को क्षमा भी कर सकता है। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत वह व्यक्ति को क्षमा भी कर सकता है जिसे मृत्यु दंड दिया गया हो, परंतु ऐसा केवल विधि मंत्रालय की सलाह पर ही किया जाता है। राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त है। वह कानून से ऊपर है तथा उस पर किसी प्रकार का फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। नेक्स्ट टॉपिक इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेयर? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रोवाइड फॉर द ऑफिशियली ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सिलेक्टेड बाय द indirectly by the elector is the colleges as consist of a member of both houses of parliament on the basis of the proportional of representation by means of single transferable voting system. The voting is held by the secret ballots. The vice president cannot be a member of either house of parliament or of the state legislatures, as their vice president has to be possess the following qualification. She has to be a citizen of India who should not be less than 35 years of age and should not hold any officer of profit and should be eligible to be selected as the member of a Rajya Sabha. The vice president is elected from a term of 5 years. She may be resigned from the office of the vice president even before the expire of 5 years by written by the president. The vice president can be removed before 5 years if your resolutions to this is effect of passed by their majority of member of Rajya Sabha and agreed to by their Lok Sabha.
The next topic is here a function of the Vice President of India. What is the function of the Vice President of India here? The Vice President is the ex office of Chairman of Rajya Sabha. There is the ex office of here Chairman of the Rajya Sabha, which mean to the world's world the Vice President she is the preside over to Rajya Sabha and perform to is a normal duty of presiding officer. This include to maintenance of order in the house, is allowing to members to the speak and ask question, and the putting bills and the motion to be voted. Since there is a vice president is not a member of Rajya Sabha, she cannot vote it to the house. But in case of ties equality of votes of favor against a bill, the vice president exercises his here casting votes so that is a decision can be read. And if ever to vacancy arise in the office of the president due to the death and resignations and impeachment, the vice president office set as the president for not more than 6 months. See above during the period the enjoy all our power of the president and does not be presides over to the house when to the officiate of president. हमारा जो अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है उपराष्ट्रपति। आखिर उपराष्ट्रपति होते कौन है और इनका क्या कार्य प्रणाली होता है और इनका सिलेक्शन का क्या विधि है। तो कहते हैं उपराष्ट्रपति जो है इम्पोर्टेंट माना जा सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति के न होने पर जो है सारे कार्यभार उपराष्ट्रपति के द्वारा ही संभाला जाता है। तो इसलिए उपराष्ट्रपति का पद भी राष्ट्रपति के पद के बराबर ही होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। कहते हैं भारत संविधान के अनुसार एक जो है उपराष्ट्रपति की व्यवस्था भी की गई है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा ही होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं और यह निर्वाचन जो है अनुपातिक जो है प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमित मत प्रणाली के द्वारा गुप्त मतदान से होता है। वह संसद के किसी सदन या राज्य विधायक का राज्य सदस्य नहीं हो सकता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए, जो जनरली राष्ट्रपति के भी होता है। वो भारत का नागरिक हो जिसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, यानी 35 वर्ष जो है निर्धारित की गई है। वह किसी भी लाभकारी पद पर आसीन न हो तथा राज्यसभा के सदस्य होने की योग्यता रखता हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि राज्यसभा की सदस्यता की योग्यता रखता हो। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होती है और वह कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही जो है राष्ट्रपति को लिखित सूचना देकर त्याग पत्र दे सकता है। राज्यसभा लोकसभा की सहमति से जो है बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके 5 वर्ष की अवधि से पहले उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। यानी अगर देखा जाए तो महाभियोग ला के जो है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान किया गया है, ठीक है, लेकिन हमारे अभी तक ऐसा कोई भी प्रावधान आया नहीं है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है उपराष्ट्रपति कार्य। देखिए उपराष्ट्रपति कार्य क्या होता है। अगर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जब बताए सभापति होता है, या राज्यसभा जहाँ चलती है उसका जो है सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है। अगर आपने कभी देखा होगा राज्यसभा के चैनल पे देखा होगा तो वहाँ पर जो बैठे होते हैं मेन व्यक्ति वो जो सभापति होते हैं वही उपराष्ट्रपति ही होते हैं, जिसका अर्थ यह है कि जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वह राज्यसभा के सभापति के रूप में अपना दायित्व ही भी निभाएगा। उसका कार्य सदन में व्यवस्था बनाए रखना और सदस्यों के बोलने तथा प्रश्न पूछने की अनुमति देना और विधायकों तथा अन्य प्रस्तावों पर मतदान करवाना होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए वो सदन में मतदान नहीं कर सकता है। परंतु यदि किसी विधायक के पक्ष या विपक्ष में मतदान के समय मतों की संख्या बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में वो अपना जो है निर्णायक मत दे सकता है ताकि कोई निर्णय निकल सके। कहते हैं जब कभी मृत्यु या त्याग पत्र में महाभियोग के कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है। यानी मृत्यु हो जाए, रिजाइन दे दे या महाभियोग से हटाने का प्रावधान हो तो इस कंडीशन में जो है उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का सारे कार्यभार संभालता है। लेकिन इसकी भी एक समय सीमा है, 6 महीने के कार्यभार संभालना होता है, 6 महीने से अधिक नहीं होता है। इस काल में उसे राष्ट्रपति की पूरी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह राज्यसभा का सभापति नहीं कर सकता है। यदि राष्ट्रपति अस्थायी रूप से अपना कार्य करने में असमर्थ हो तो बिना कार्यवाहक राष्ट्रपति बने उपराष्ट्रपति उसके जो है दायित्व को निभाता है और उसको ही ये कार्य करना होता है। The next topic is the Prime Minister and the Council of the Minister. So who is the Prime Minister and Council Minister here? The executive power of the President as exercised by the Council of Minister. The Constitution provides that there shall be a Council Minister with the Prime Minister at the
he had to be at the advice to the president in the exercise of his function. Here the word is a shall indicate that the president cannot function without a council minister. The president is a constitutionally head of the state, but the real head of the government is the prime minister. That is the most important things here. The next year, the appointment of the Prime Minister. The Prime Minister is appointed by the President, but the President does not have a freedom in the selection of the Prime Minister. Normally, the President has to be invite leader of their majority party from the government. In case no single party in the clear majority, the President invite the person who is likely to be a command support of two or more parties which make up majority in the Lok Sabha. Was appointment the Prime Minister hold office so long as she enjoy the support of majority of member of Lok Sabha. The Prime Minister is normally leader of the majority party in the Lok Sabha. However, there have been a case been to the member of Rajya Sabha was made of Prime Minister. This happened when to Mrs. Indira Gandhi was the first appointment of Prime Minister in 1966, or when to R.K. Gujral became Prime Minister in 1997. When the Rajya Sabha member Dr. Manmohan Singh became a Prime Minister in 2004, in the 1996 HD Deval Gowda was not a member of any house. He is later to enter the Rajya Sabha. The member of Council of Ministers are appointed by the President on the advice of the Prime Minister. Well, the selecting the Minister, the Prime Minister is the PM. Keep in the mind that due to representation of different regional of the country to the various religious and the caste group. In a coalition of government, the member of coalition is a parties have to be given due to the representation in the counseling of minister. The Prime Minister decide to the is a propolis of there is a minister and can elect this at his will. In order to be a minister, a person has to be a member of either of two houses of parliament. Even a person who is not a member of any of two houses can become a minister for a period of 6 months. Within the 6 months, the minister has to get himself herself selected to the either house of parliament, and following which she is the cases of the minister. All the ministers are collected as well as the individually responsible to the Lok Sabha. The Council of Ministers consists of two categories of minister. These are the Cabinet Minister and Minister of State. The Cabinet Minister are usually senior member of party, coordination of party. The Minister of State is a come next to the Cabinet Minister. Some of the Minister of the State have an independent charge of the department, while other Minister of State only assist the Cabinet Minister. Sometimes even depth of minister are also appointment to assist of minister. The minister other than Cabinet Minister normally do not attend the meeting of a cabinet. The Prime Minister is a preside over to the meeting of the cabinet. All the policy matters are decided by the cabinet. The Prime Minister has the authority to refuse their is the proposals of the minister or even ask for their resignations. In case of resignation of death of Prime Minister, the entire Council of Ministers also goes out of office. And this is because the counseling minister is created by the Prime Minister who also headed it. The entire counseling of minister responsibility to the Lok Sabha. The next year, the power and function of the Prime Minister. The Prime Minister is the most important and powerful functionary of the Union government. The President is the head of the government and leader of the Lok Sabha. The President is the principal advisor to the President and the country as a visible face of is a spokesperson in their international affair. He has a role of the unparalleled and the President give a direction to the governance of the country. The Prime Minister began the head of the Council of Ministers and select the minister to be chosen by their President. The minister in fact are chosen by their Prime Minister and remain minister as long as they enjoy the confidence of Prime Minister. The Prime Minister is distribute
a propolis is among to the minister, the president can be changed the propolis as when the desire. The prime minister can drop the minister or ask here or resignation. The Prime Minister is a preside over to the meeting of Cabinet and conduct its proceedings. As a head of Cabinet, she is largely influence the discussion of Cabinet. The Prime Minister coordinate the working of various ministers. The President resolve the disagreement if any amongst of different minister. The Prime Minister is the link between to the President and the Cabinet. The discussion of the cabinet are conventionally to be president by the prime minister. It is he and the who keep the president informed of all the policy and decision of the government. No minister can meet the president without the permission of the prime minister. All important his appointment are made by the president on the advice of prime minister. It is on the advice of Prime Minister that the President is a summons and prorogues their session of the Parliament and even dissolve their Lok Sabha. The Prime Minister is the a spokesman and the defender of the policy of the government in the Parliament. When many minister is unable to defend his here action and properly the Prime Minister come to the help of that minister both inside and outside there is a parliament. The Prime Minister is the leader of the nation. The nation look his here for the guidance. At the time of general election, it is the Prime Minister who is seek the is a mandate of the people. The Prime Ministers play an important role in the formulations of domestic and foreign policy. The President represents the country in a world arena by the participating in the international meetings such as the NAM, SAARC, and the United Nations. And all international agreement and treating with the other countries are concluded with the consent of the Prime Minister. The President is a chief spokesperson of the policy of a country. The Prime Minister has a special status both in a government and parliament. This makes his here the most powerful functionary and his here position and power dependent upon his here is a personality. A person who the stature of Jawaharlal Nehru or Indira Gandhi is there a way more effective than a person who lack vision of the depending on the support from outsider his party. The Prime Minister is not only leader of the parliament but also leader of the nation. The Prime Minister has to ensure the buildings cooperation of all important members of his here urban party. In a minorities government, the Prime Minister has to depend on outside help that might act a hindrance in his effective role. यदि हम यहाँ बात करें प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद की तो कहते हैं प्रधानमंत्री का पद जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि कहते हैं हमारे देश में राष्ट्रपति जो होते हैं सिर्फ नाम मात्र के होते हैं। इनका सारे शक्ति जो होता है प्रधानमंत्री में निहित होता है और सारे कार्य जो है प्रधानमंत्री के ही अकॉर्डिंग होता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री का जो पद है भारत में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि सारे जो राजनीतिक कार्यविधि होते हैं वो प्रधानमंत्री के अंतर्गत ही होते हैं। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री की जो चुनाव होती है इलेक्शन होती है तो उसमें कैसे जो है प्रधानमंत्री को बनाया जाता है तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके समक्ष रहेगा। तो इसी पे जो है हम आज चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री की सिलेक्शन कैसे होती है, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या है, ठीक है। प्रधानमंत्री सबसे बड़ा हेड क्यों होता है, क्यों जो है राष्ट्रपति नाम मात्र का ही शासन चलाते हैं जबकि सारे शक्ति जो होता है प्रधानमंत्री के ही अंतर्गत घूम रहा होता है। तो ऐसा क्या सिस्टम बनाया गया है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में सारे शक्ति जो होती है राष्ट्रपति के अंतर्गत ही होती है, चाहे उसमें अगर लोकसभा हो चाहे आपका कुछ भी हो, लेकिन वहाँ पर सारी शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति के इर्द गिर्द ही घूमता है। कहते हैं वहाँ पर कांग्रेस है उसके पास सिर्फ विधानपालिका का ही शक्ति है जिसमें सीनेट भी आता है। न्यायपालिका में न्यायपालिका के पास शक्ति होती है और राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियाँ होता है, सभी फैसले लेने के अधिकारी होते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो है राष्ट्रपति नाम मात्र का ही होता है, सारे शक्तियाँ जो होते हैं प्रधानमंत्री के अंतर्गत ही घूमते हैं। चलिए देखते हैं प्रधानमंत्री उनके मंत्री परिषद की गठन कैसे होती है और किस प्रकार जो है ये देश के भविष्य के लिए बनते हैं। राष्ट्रपति की कार्यपालिका लंबी शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद द्वारा ही किया जाता है।
संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कार्य में सहयोग और परामर्श के लिए जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगी, जिसके बिना राष्ट्रपति अपना कार्य नहीं चला सकता। राष्ट्रपति देश के सर्वैधानिक अध्यक्ष होता है, परंतु प्रधानमंत्री सरकार जो है वास्तविक अध्यक्ष होता है। देखिए यहाँ पर देश के सर्वैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति को ही बना गया है, परंतु प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक अध्यक्ष होता है, यानी रियल होता है। ये जो होते हैं राष्ट्रपति नाम मात्र के ही भारत में होते हैं। यदि हम बात करें प्रधानमंत्री की नियुक्ति, आखिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती कैसे है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, परंतु उसे जो है प्रधानमंत्री चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती है। देखिए राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ऐसे नहीं कर सकता है कि हम किसी भी व्यक्ति को ले और उसको हम प्रधानमंत्री बना दें। ठीक है, सामान्यतः उसे बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना पड़ता है। मान लीजिए हमारे देश में जो इलेक्शन होते हैं उसमें सबसे अधिक जिसको बहुमत मिलता है उसी में से किसी एक को जो है बना दिया जाता है प्रधानमंत्री। जैसे आपने देखा भी होगा 2004 में कि जब सोनिया गांधी की जीत हुई थी, कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी, तो वहाँ पर जो है सोनिया गांधी जी को बनाने के लिए आमंत्रण किया गया था पार्टी में, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री न बना के जो है मनमोहन सिंह जी को जो है प्रधानमंत्री देश के बनाया गया था। और ये 2 टाइम तक यानी 10 साल तक जो है भारत में अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान भी दिए थे। तो ये सारे कंडीशन यहाँ पर वही बनता है कि जो जिस दल को जो है बहुमत प्राप्त हो जाती है उसी को ही प्रधानमंत्री उन्हीं पार्टी में से किसी एक व्यक्ति को जो है नियुक्त किया जाता है। यदि किसी भी एक दल के सपक्ष बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो उस समय व्यक्ति को आमंत्रित करता है जिसे 2 या 2 से अधिक दलों के समर्थन से लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। यानी देखिए जब अगर पूरा बहुमत नहीं मिलता तो आपको पता ही है, साधारण शब्दों में बताऊंगा कि ये गठबंधन हो जाती है। अगर किसी एक व्यक्ति को पूरा बहुमत नहीं मिलता, एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, तो वो क्या करते हैं 2 या 2 से अधिक पार्टियों से आपस में जो है विधायकों को खरीद लेते हैं या उनको अपने पास बुला लेते हैं और इस तरह से जो है अपनी सरकार बना लेते हैं। इसमें मुझे डिटेल बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा ही होगा, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे आपका झारखंड में हो, चाहे बिहार में हो, ये रिसेंटली सारी घटना हुई है जहाँ पर बहुमत किसी और का था, लेकिन उन्होंने उसका साथ छोड़ के दूसरे पार्टी के हाथ पकड़ लिया और इस वजह से सरकार जो है पलट गई है। तो ये ऐसा ही कंडीशन राष्ट्रपति में भी होता है। अगर बहुमत किसी एक पार्टी को नहीं प्राप्त होती है तो 2-4 पार्टी मिल के जो है अपनी मेजोरिटी बनाते हैं और उसके पश्चात जो है राष्ट्रपति उनको निमंत्रण भेजते हैं सरकार बनाने के लिए। यद्यपि ऐसा भी हुआ जब राज्यसभा के किसी सदस्य को प्रधानमंत्री बनाया गया। ऐसा तब हुआ जब श्रीमती इंदिरा गांधी को 1966 में पहली बार प्रधानमंत्री बनाया गया था। जब 1997 में इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने। जब राज्यसभा के सदस्य डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 में प्रधानमंत्री बने। 1996 में एच.डी. जो है देवगौड़ा किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने पर बाद में वे राज्यसभा के सदस्य बन गए। प्रधानमंत्री के परामर्श से जो है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखिए जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाता है, और नियुक्ति किसका होता है, जो पार्टी में सबसे अधिक बहुमत प्राप्त होता है उसको जो है पार्टी जो है बनाने के लिए जो है राष्ट्रपति आमंत्रण करता है। और जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो प्रधानमंत्री जो होता है अपनी मंत्रिपरिषद की गठन करता है, लेकिन मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति होता है राष्ट्रपति के द्वारा होता है, यानी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मंत्रियों का चयन करते समय प्रधानमंत्री यह भी सुनिश्चित करता है कि विभिन्न क्षेत्र, धार्मिक और जातीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व मिले, यानी सबको जो है सही मार्गदर्शन करने वाले प्रतिनिधि मिले। कहते हैं गठबंधन की सरकार में सभी घटक दलों के उचित प्रतिनिधित्व देना ही पड़ता है। यानी गठबंधन मान लीजिए होता है तो सभी पार्टियों का जो है सही प्रायोरिटी देना पड़ता है कि सभी व्यक्तियों के जो सदस्य होंगे इस पार्टी में सम्मिलित होकर कराना पड़ता है। प्रधानमंत्रियों में विभागों की बांटने में जो है निर्णय लेता है तथा अपनी इच्छा से उनमें परिवर्तन भी कर सकता है। मंत्री बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदस्य आवश्यक होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह 6 मास के लिए मंत्री बन सकता है। ऐसे मंत्री को 6 महीने के अंदर चुनाव जीतकर संसद के किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा, अन्यथा उसे मंत्री पद छोड़ना ही पड़ता है। सभी मंत्री सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। मंत्रिपरिषद में 2 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक तो होते हैं कैबिनेट मंत्री तथा दूसरे होते हैं राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री प्रायः दल तथा घटक दलों के वरिष्ठ सदस्य होते हैं और राज्य मंत्री को कैबिनेट मंत्री के बाद का दर्जा प्राप्त होता है।
कुछ राज्य मंत्रियों के पास किसी विभाग का स्वतंत्र कार्यभार होता है जो केंद्रीय मंत्रियों को सहयोग प्रदान करते हैं। कभी कभी मंत्रियों के सहयोग के लिए उप मंत्रियों की भी नियुक्ति की जा सकती है, तो ये प्रावधान अवश्य है। केंद्रीय मंत्रियों के अतिरिक्त बाकी मंत्री सामान्यतः मंत्रिमंडल के बैठक में भाग नहीं लेते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है और सभी नीतिगत निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा लिए जाते हैं। कहते हैं प्रधानमंत्री को यह अधिकार प्राप्त है कि वह मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन भी कर सकते हैं अथवा उन्हें त्यागपत्र देने के लिए भी कह सकते हैं। यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो पूरा मंत्रिपरिषद पद मुक्त हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मंत्रिपरिषद का गठन भी प्रधानमंत्री ही करता है, उसका नेतृत्व भी प्रधानमंत्री ही करता है। इसलिए अगर उसकी मृत्यु होता है तो ऑटोमेटिक जो होती है मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, मुक्त हो जाती है, सभी का पद जो होता है मुक्त हो जाता है। जो नया जो है प्रधानमंत्री बनेगा वो फिर से जो है अपना मंत्रिपरिषद का गठित करेगा। तो ये प्रथा है और ये प्रावधान भी है हमारे देश के जो है पॉलिटिकल में। उसके पश्चात है हमारे समक्ष प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ। अब देखिए प्रधानमंत्री कार्य और शक्ति जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति जो सिर्फ होते हैं नाम मात्र का, सारे शक्ति जो होते हैं प्रधानमंत्री के अंदर निहित होती है। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली अधिकार होता है। वो सरकार का अध्यक्ष होता था, लोकसभा का नेता होता है। वो राष्ट्रपति का प्रमुख सलाहकार तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों के देश का जो है स्पष्ट प्रवक्ता भी होता है। उसकी भूमिका अति तुलनीय होता है और देश के प्रशासन के दिशा निर्देश भी प्रदान करता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होने के नाते वो उन मंत्रियों का चयन भी करता है जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मंत्री पद की शपथ दिलवाई जाती है। वास्तव में मंत्रियों का चयन प्रधानमंत्री ही करता है और वो तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक प्रधानमंत्री का विश्वास उसमें बना हुआ है। जैसे ही विश्वास खत्म होगा उसे जो है अपनी पद को छोड़ना पड़ जाता है। प्रधानमंत्रियों में विभागों का विभाजन भी करते हैं, यानी प्रधानमंत्री जो होते हैं मंत्रियों के लिए जो है सभी विभाग निश्चित करते हैं कि कौन व्यक्ति किस विभाग में कार्यरत होंगे और अपनी इच्छा से उनके विभागों में परिवर्तन भी कर सकता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को हटा भी सकता है अथवा उसे त्यागपत्र देने के लिए भी कह सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की जो है बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा कार्यवाही को भी चलाता है। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होने के नाते वह इसके निर्णय को काफ़ी हद तक प्रभावित भी कर सकता है। वह विभिन्न मंत्रियों के कार्य में समन्वय स्थापित भी करता है। यदि मंत्रियों में कोई सहमति हो तो उसे भी प्रधानमंत्री ही सुलझाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी का कार्य करता है। यानी देखा जाए दोस्तों तो प्रधानमंत्री जो होता है वो राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच का कड़ी का काम करता है, यानी सबको जोड़ता है। मंत्रिमंडल के निर्णय के राष्ट्रपति तक पहुंचता है। सरकार की सभी नीतियों से राष्ट्रपति को अवगत कराया जाता है और बिना प्रधानमंत्री की अनुमति से कोई भी मंत्री राष्ट्रपति से नहीं मिल सकता है। राष्ट्रपति द्वारा किए जाने वाले सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां प्रधानमंत्री की सलाह से ही होता है। उसी के परामर्श से जो है राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाता है, स्थगित कर सकता है और यहाँ तक कि लोकसभा को भी भंग कर सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि वो लोकसभा को भी भंग करने की जो है प्रावधान उसके पास निहित होते हैं। कहते हैं अगर संसद में प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख प्रवक्ता है तथा उसकी नीति का जो है अतिरक्षक होता है। जब कोई मंत्री अपने कार्य के लिए संसद में या कहते हैं संसद के बाहर बचाव पक्ष रखने में असमर्थ होता है तो प्रधानमंत्री ही सहायता करता है। प्रधानमंत्री सरकार का नेता है और राष्ट्र उससे मार्गदर्शन की आशा सदैव रखता है। आम चुनाव के समय प्रधानमंत्री जनता का जनादेश देने के लिए कहता है और देश के आंतरिक तथा बाहरी नीति निर्धारण में प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। चाहे सार्क बैठक हो या संयुक्त राष्ट्र हो या गुट निरपेक्ष की बैठक हो, सभी में जो है प्रधानमंत्री ही प्रतिनिधित्व करता है और दूसरे देशों के साथ होने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते तथा जो संघीय प्रधानमंत्री की सहमति से ही संपन्न होता है। वह देश की नीति का प्रमुख प्रवक्ता होता है। सरकार तथा संसद दोनों में प्रधानमंत्री को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। यही उसे एक बहुत ही सशक्त अधिकारी बना देता है। उसकी स्थिति एवं शक्तियां उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। जवाहरलाल नेहरू तथा इंदिरा गांधी जैसे सतर वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से सदैव अधिक प्रभावशाली होंगे जिनमें दुर्दशा की कमी है अथवा जो समर्थन के लिए अपने दल से बाहर के लोगों पर निर्भर करता है।
प्रधानमंत्री न केवल संसद का बल्कि राष्ट्र का भी नेता होता है। प्रधानमंत्री को अपने दल के सभी सदस्यों का सर्वोच्च सहयोग प्राप्त करना होता है। अल्पसंख्यक सरकार में प्रधानमंत्री को बाहर से समर्थन पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे उसकी प्रभावशाली भूमिका में रुकावट आ सकती है। टॉपिक इज द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर एंड द कैबिनेट हियर। द टर्म काउंसिल मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर ऑफन यूज्ड interchangeable term. In the reality, there are not period of 44 is amendments of the Constitution. The word a cabinet was not mentioned in the Constitution. Let's add the distinction between to the counseling of ministers and cabinet. The main point of difference are here. Counseling minister is a consist of all category of minister, and cabinet minister are minister of state. And there is a cabinet on the other hand consists of the senior minister only. It is a member is a various form of 15 to 30 will the entire council minister can consist over more than 70. The council minister as a whole rare meets. The cabinet on the other hand meet frequently as a possible. It is a cabinet that is to determine the policy and program of the government and not be council minister. Thus the cabinet is on the inner body within the councils of the minister. Its act in the name of the council of minister exercises all power on its behalf. The next year, the power and function of the cabinet. It has is enormous power and the manifold responsibility. All the executive power of the president are exercised by the cabinet headed by the prime minister. The cabinet determine and formulate the internal and external policy of the country. It take all the major decision and regarding defense and security of the countries. It has also the formulate policy so as to be provide better living and condition for the people. Cabinet has a control over national finance. The cabinet is responsible for the whole of expenditures of their government as well as arising necessary revenue. It is the cabinet that prepare the text of president as address of parliament. The cabinet is also responsible for the issuance of the ordinance by the president when the parliament is not in a season. The seasons of their parliament are convened by the president on the advice of cabinet convention through the prime minister. The cabinet prepare the agenda of season of the parliament. कहते हैं अगर देखा जाए हमारा जो अगला टॉपिक है मंत्री परिषद तथा मंत्रिमंडल। देखिए यहाँ पर साफ शब्दों में इस बात को उजागर करने की कोशिश किया गया है कि मंत्री परिषद तथा मंत्रिमंडल जैसे शब्द का प्रयोग प्राय एक दूसरे के लिए कर लिया जाता है। हम कभी मंत्री परिषद भी कह देते हैं, कभी हम मंत्रिमंडल भी कह देते हैं। वास्तविक में ऐसा नहीं है। संविधान के 44वें संशोधन से पूर्व मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया था, यानी मंत्रिमंडल का जो है संविधान में कहीं भी इसकी बात नहीं आई थी। आइए हम मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर जानें। इसमें मुख्य अंतर इस प्रकार है, मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री होते हैं। देखिए मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री भी उसमें होता है और राज्य मंत्री भी होता है, जबकि मंत्रिमंडल में केवल वरिष्ठ मंत्री ही होते हैं। मंत्रिमंडल में सिर्फ वरिष्ठ मंत्री होते हैं, यानी जो बुजुर्ग होते हैं वही होते हैं या काफ़ी एक्सपीरियंस वाले होते हैं। इसमें मंत्रियों की संख्या जो होती है 15 से 20 भी हो सकती है, जबकि मंत्री परिषद में 70 से अधिक मंत्री हो सकते हैं, यानी मंत्री परिषद में जो है संख्या यहाँ पर 70 से भी अधिक हो सकते हैं। संपूर्ण मंत्रिपरिषद की बैठक कभी कभी ही होती है। दूसरी ओर मंत्रिमंडल की बैठक आवश्यकता अनुसार बार बार भी होती रहती है। सरकार की नीति तथा कार्यक्रम का निर्धारण मंत्रिमंडल ही करता है, न कि मंत्री परिषद। तो आप समझ गए होंगे कि मंत्री परिषद जो होती है बहुत सारे मंत्री होते हैं, उसमें कैबिनेट मंत्री भी सम्मिलित होता है और राज्य मंत्री भी होते हैं, और इसकी संख्या जो होता है मंत्री परिषद की वो 70 से अधिक होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो मंत्रिमंडल जो कि सिर्फ वरिष्ठ नेता ही इसमें सम्मिलित होते हैं और इसकी संख्या जो होती है 15 से 20 होती है। तो ये आप अच्छे से समझ भी गए होंगे, समझ भी आ गया होगा।
सरकार की नीति तथा कार्यक्रम का निर्धारण मंत्रिमंडल की ही करता, न कि मंत्रिपरिषद। इस प्रकार मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद के नाम से ही कार्य करता है तथा उसी की ओर जो है कार्य भी करता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मंत्रिमंडल कार्य एवं शक्तियाँ। कहते हैं मंत्रिमंडल की शक्तियाँ विशाल एवं जिम्मेदारियाँ अनेकों है। राष्ट्रपति की सभी कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ही करता है। मंत्रिमंडल देश की आंतरिक एवं विदेशी नीतियों के निर्धारण संबंधी सभी प्रमुख निर्णय भी लेता है। लोगों को बेहतर जीवन की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के लिए भी मंत्रिमंडल नीति निर्धारण करता है। यह राष्ट्रीय वित्त पर जो है नियंत्रण भी रखता है और सरकार द्वारा किए जाने वाले सारा खर्च तथा आवश्यक राशि जुटाना इसकी जिम्मेदारी हो जाती है। राष्ट्रपति द्वारा संसद में दिए गए जाने वाले अभिभाषण की विस्तृत जो है विषय वस्तु भी जो है मंत्रिमंडल ही तैयार करता है। जब संसद का अधिवेशन न हो रहा हो तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का दायित्व भी इसी पर ही होता है। प्रधानमंत्री के माध्यम से जो है मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन भी बुलाता है और संसद के कार्यक्रम की रूपरेखा भी मंत्रिमंडल ही तैयार करता है। अगर देखो दोस्तों, यहाँ पर आप कन्फ्यूज़न होते रहोगे कि यहाँ मंत्रिमंडल ही बार बार आ रहा है और शब्द नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको ये समझना होगा कि मंत्रिमंडल का वहाँ पर सारे कार्य होता है। ठीक है, सारे तरह के रूल रेगुलेशन जो है मंत्रिमंडल के अंतर्गत ही बनाई जाती है। जैसे अमेरिका में सीनेट जो होती है, जो कांग्रेस का ही पार्ट होता है, सारे दायित्व सीनेट के पास ही होता है। लेकिन अगर हम देखें निचले सदन, तो निचला सदन जो होता है सिर्फ नाम मात्र का होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो होता है निचला सदन बहुत शक्तिशाली होता है और अमेरिका में निचला सदन जो होता है बिल्कुल कमज़ोर होता है और भारत में जो ऊपरी सदन होता है वो बहुत कमज़ोर होता है और अमेरिका में जो ऊपरी सदन जो होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। The next topics here are responsibility of the minister. We have already read that there is the counseling of minister with the prime minister as it is a had to add the advice to president. Constitutionally, their minister hold office during the pleasure of the president, but in fact they are responsible to and removal by the Lok Sabha. Actually, the Constitution has itself declared that a counseling of minister shall be responsible to the Lok Sabha, not the both house. The ministerials as responsibility there is a essentially feature of parliamentary from a government. The principle of the ministerials and responsibility has to the dimension and collective responsibility and individually of responsibility. And the next year, collective responsibility. What do you mean to the collective responsibility? Our constitution clearly said that the council of ministers shall be a collective responsibility to the house of people. It actually means that a minister are responsible to the Lok Sabha, not individually alone, but collective also. Collective responsibility has a two implication. First here, it means that every member of the counseling of the minister is a accept or responsible for the each and every decision of the cabinet. The member of counseling of her minister swim and sink together. When a decision has been taken by cabinet, every minister has to stand by it without any hesitations. And if a minister does not agree with their cabinet decision, the only alternative left to him here is the resign from a counseling minister. This instance of collective responsibility means that the minister must vote with the government, speak in defense of it is if the prime minister insists and see he is cannot be afterward rejection of criticism of the act. Either a parliament are in the constitutionally on the ground that she here did not be agree with the decision. Secondly, voted of not confidence against the prime minister is a vote against the whole council of minister. Similarly, advice vote is the Lok Sabha on government bill or budget or implies lack of confidence in the entire council of their minister, not only the is a mover of the bill. The next year, individual of responsibility. Third, their ministers are collectively responsible to be Lok Sabha. They are also individually responsible to the Lok Sabha. Individually responsibility is enforced even an action taken by a minister without the concerns of their cabinet or the prime minister is criticized
and not approval by the parliament. Similarly, if a person conduct of a minister is a questionable and is unbecoming, he may be have to be resign without affecting the fact of the government. If a minister is a become a liability as a embarrassment on the prime minister, he may be asked to quit. A non-confidence motion. What do you mean to the no confidence motion? It is a motion moved by the member of legislatures as expressing the no confidence of house in the counseling of minister. If adopted by their legislature, a counseling minister has been resigned. तो दोस्तों हमारे समक्ष यही आया है कि मंत्रियों का उत्तरदायित्व, आखिर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं इन मंत्रियों को। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति के परामर्श तथा सहयोग देने के लिए मंत्री परिषद होती है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है और संविधान के अनुसार मंत्री परिषद के प्रसाद काल तक अपने पद पर बने रहते हैं। यानी परंतु वास्तव में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी और लोकसभा के उन्हें हटा सकती है। कहते हैं वस्तुतः यह है कि संविधान में कहा गया है कि मंत्री परिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, दोनों सदन के प्रति नहीं। मंत्री परिषद उत्तरदायित्व संसाधनात्मक सरकार का एक आवश्यक लक्षण होगा। मंत्री परिषद जो दायित्व को जो सिद्धांत के दो आयाम होते हैं, एक तो होता है सामूहिक उत्तरदायित्व, एक होता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो देखते हैं पहला जो है सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है। पहला जो हमारे समक्ष आता है सामूहिक दायित्व। हमारे संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि मंत्री लोकसभा के प्रति केवल व्यक्तिगत रूप से ही उत्तरदायी नहीं अथवा सामूहिक रूप से भी होते हैं। कहते सामूहिक उत्तरदायित्व के दो निहित अर्थ होता है। पहला यही कि मंत्री परिषद का प्रत्येक सदस्य मंत्रिमंडल के प्रत्येक निर्णय की जिम्मेदारी स्वीकार भी करता है। मंत्री परिषद की सभी सदस्य इकट्ठे तैरते हैं तथा इकट्ठे ही डूबते भी हैं, यानी इकट्ठे उनको चलना भी है, इकट्ठे उनको आगे बढ़ना भी है। जब मंत्रिमंडल द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है तो प्रत्येक मंत्री को बिना किसी झिझक से उसका समर्थन करना होगा। यदि कोई मंत्रिमंडल के निर्णय से सहमत नहीं है तो उसके लिए केवल एक विकल्प बचता है कि वह मंत्री परिषद से त्यागपत्र दे दे। सामूहिक उत्तरदायित्व का सत्तर यह है कि मंत्री सरकार के साथ मतदान भी करे। यदि प्रधानमंत्री आग्रहपूर्वक कहे तो उसका समर्थन करे और बाद में संसद में या अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने इस निर्णय की आलोचना को इस आधार पर रद्द न करे कि वह इस निर्णय से सहमत नहीं था। दूसरी यह कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित होना समूचे जो है मंत्री परिषद के लिए विरुद्ध अविश्वास है। इसी प्रकार लोकसभा में भी यदि किसी भी सरकारी विधायक का बजट के विरुद्ध बहुमत नहीं होता है तो सारे मंत्री परिषद को विरुद्ध अविश्वास है, न कि केवल विधायक प्रस्ताव करने वाले के विरुद्ध। यानी कहा जाए तो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी संस्था से जुड़ा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति एक व्यक्ति का आलोचना किया जाता है तो इसका प्रभाव सभी व्यक्तियों पर ही पड़ता है। मान लीजिए कोई अगर व्यक्ति गलत करता है तो इसका प्रभाव सिर्फ उस व्यक्ति पे नहीं पड़ता है, उसके पूरे परिवार पर पड़ता है। तो यही बात यहाँ समझाने की कोशिश किया गया है। मान लीजिए एक पुलिस वाला गलत कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो इससे पूरा डिपार्टमेंट ही बदनाम होती है। ये डायलॉग आपने फिल्मों में भी सुना होगा। उसके पश्चात दूसरा पॉइंट यही बताता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। देखिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का मतलब होता है अपना स्वयं। कहते हैं, मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूँ कि कोई मंत्री होता है या कोई देश का प्रतिनिधि होता है, वो निजी कभी नहीं होता है, वो सार्वजनिक होता है और उसका फैसला भी सार्वजनिक होना चाहिए, ना कि निजी होना चाहिए। तो ये बात तो आपके लिए जरूरी था। अब देखते हैं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या होती है। यद्यपि मंत्री लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, यद्यपि वे लोकसभा के प्रति व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायी होता है और प्रधानमंत्री अथवा मंत्रिमंडल की सहमति के बिना यदि किसी मंत्री द्वारा किए गए किसी कार्य का आलोचना होता है तो उसे संसद द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व लागू होता है। इसी प्रकार यदि किसी मंत्री का व्यक्तिगत व्यवहार अभद्र अथवा अप्रश्नात्मक हो तो सरकार पर कोई प्रभाव पड़े बिना उसे त्यागपत्र देना होगा। यदि कोई मंत्री सरकार का बोझ बन जाता है अथवा मंत्री जो है प्रधानमंत्री के लिए सिरदर्द बन जाता है तो उसे पद छोड़ने के लिए ही कहा जा सकता है। तो ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है कि
वो संसद को जो है सही मान्य दे और सही रूल रेगुलेशन के साथ अपना कार्य संपन्न भी करे। अगर हम बात करें अविश्वास प्रस्ताव की, तो इसका मतलब यही होता है कि यह प्रस्ताव विधायकों के किसी भी सदस्य द्वारा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध निम्न सदन अथवा अभियुक्त अविश्वास है। यदि विधायक इसे पारित कर देता है तो मंत्रिमंडल को जो है मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ जाता है। यानी विधायक इसे पारित कर दिया जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना स्वाभाविक बात बन जाती है। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये टॉपिक और चैप्टर दोनों ही खत्म हो जाते हैं। हम अगले चैप्टर में मिलेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। तो आप इसी तरह तिरपान स्टडी सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, समझते रहिए। लेकिन दो बात आपको भूलना नहीं है। पहली ये कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चों तक भी पहुंचाने का संकल्प लेना है, और ये संकल्प पूरा आप ही से होगा जब तक ये आप व्हाट्सएप स्टेटस पे नहीं लगाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि जितना हो सके सब्सक्राइब करके रख लो तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर पहली बार वीडियो देख रहे होते तो सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको जो है समय समय पर मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। मान लीजिए अगर कोई टॉपिक अगर आप YouTube पर सर्च करते हो तो उस पर आपको मेरा वीडियो जल्दी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये उस YouTube का प्रावधान है कि जो पहले से ही है वो उसी का जो है आगे दिखाया जाता है। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हो, वहाँ पर आपको वीडियो का ऑप्शन मिलता है जहाँ पर सारे वीडियो आपको लाइन वाइज दिख जाता है। जो टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण होगा उसको चला के जो है अपने कहीं भी सेव कर सकते